Assalamualaikum everyone, this is Sir Abdullah from GPC School. Learn about chapter number 4, the data communication and computer networks. This chapter is very important if you select computer in your further studies like in university level, because data communication is a wide, you can say it is a very big field, and this is the first time you are learning about communication. Okay, in communication, data communication, we have so many types, but the one type we have right now we will discuss about its terminologies, like इसकी बुनियादी इसमें बेसिक इसकी क्या है. The first one is data communication का मतलब ये है कि आपके पास डेटा है, कोई सी भी इंफॉर्मेशन है और आप उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या वो आपके साथ शेयर कर रहा है, किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं. This is all measured in communication field. Okay, now the first one is data. You have some kind of data like in a picture form, like in a video form. It's a raw data. आपके पास normal data क्यों ना हो, like paper form में हो or in a computer form, anything. It's called a data. Data communication, like now a communication has started between two parties. If you can say one computer to another computer, like a one person to another person, या आप एक आदमी से दूसरे आदमी को डेटा समझा रहे हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को डेटा दे रहे हैं, या वो आपको कुछ बता रहा है. इट्स अ डेटा कम्युनिकेशन, कि जब एक डेटा, एक मालूमात या कोई भी इंफॉर्मेशन एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाए, तो वी कॉल डेटा कम्युनिकेशन. नाउ डेटा ट्रांसमिशन, now we are talking through our mobile phones, we are communicating with computers, like we are communicating through our letters, applications. कि डेटा आपने जो भी किसी को शेयर किया वो किस तरीके से किया, sometimes I can example we use right nowadays we are using WhatsApp. Okay, WhatsApp is a data transmission. We send videos on WhatsApp, audios, pictures, message, text message, numbers, everything. Look, even our we send on our WhatsApp. So WhatsApp is a data transmission between two parties. मतलब मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है और हम लोग WhatsApp पे communicate करते हैं. तो WhatsApp हमारा एक data transmission है. It's just an example for you. Data transmission में इनमें कौन-कौन सी types होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. Clear? Now let's move on analog signal. What is analog signal class? Analog signal it's a continuously change. एनालॉग सिग्नल आपके पास कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल इज माय वॉइस. मेरी जो आवाज़ है ये एनालॉग सिग्नल के थ्रू ट्रेवल कर रही है. क्लियर है? फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी सीन इन मूवीज और इन ड्रामाज दैट अ मैन इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड देयर इज अ मॉनिटर ओवर देयर which is showing his pulse. Sometimes the pulse is so much high, sometimes too much low. कि जो हार्ट बीट्स होती हैं वो भी आपके पास एनालॉग सिग्नल होती हैं, कि बस इंसान की जो भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ हो उसकी जो एनालॉग दिल की सिग्नल्स होती हैं वो इस तरह मॉनिटर पे दिखा रही होती हैं. ये एनालॉग सिग्नल्स होती हैं, कंटिन्यूसली चेंजिंग. नाउ व्हाट इज डिजिटल सिग्नल्स? Digital signals are based on 0 and 1, like binary form. I already told you it's work on 0 and 1. If the line is on this stage, it will be called 1 and this one is called 0. इधर अगर हमारे पास जो सिग्नल है ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास 1 कहलाएंगे और ये हमारे पास नीचे 0. ओके, क्यों है? Why this is like that we will discuss in further topic. Now let's move on. Data rate and bit rate. What is data rate and bit rate? I will comprise for you and I will tell you only one definition. And in data rate we measure data travel per second, के एक सेकंड के अंदर कितना डेटा ट्रेवल हुआ. क्लियर? बाउड रेट, कितने सिग्नल्स एक सेकंड में ट्रेवल हुए. सिग्नल्स ट्रांसफर पर सेकंड एंड डेटा ट्रांसफर पर सेकंड. इसके अंदर कितना डेटा ट्रांसफर हुआ पर सेकंड में और इसके अंदर कितने सिग्नल्स ट्रांसफर हुए पर सेकंड. द लास्ट वन वी हैव सिग्नल टू वर्ड्स. इट इज़ बेसिकली यूज इन अ इंजीनियरिंग फील्ड. ये इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये किस तरह होती है? आई विल टेल यू. इफ़ समवन हैव रिसीव्ड द सिग्नल्स, किसी को सिग्नल्स मिलते हैं, क्लियर, so they will check the signals
एंड द बैकग्राउंड नॉइस, कि जो हमारे पास सिग्नल रिसीव हुए उसके पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस, जो डिस्टर्बेंस आती है वो कितनी आई है. लाइक समटाइम्स वी रिसीव ऑफ सम एनी मैसेज, और इफ़ यू कॉल समवन एंड ही सेड टू यू आई डिडंट गेट योर वॉइस क्लियरली, कि मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है. सो दिस इज़ द थिंग, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कि आपके जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो और कितनी बैकग्राउंड नॉइस के आपके साथ जा रहे हैं. क्लियर? इट्स सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज यूज्ड टू मेजर हाउ मैनी सिग्नल्स कैरीड नॉइस सिग्नल्स बैकग्राउंड ऑफ इट. नाउ the last part we are going to discuss in this chapter is components of a communication system. What are the components? कि अगर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसके अंदर हाउ मेनी थिंग्स आर प्लेइंग देयर रोल्स, कौन कौन है जिसके अंदर हिस्सा है कम्युनिकेशन में. द फर्स्ट वन इज मैसेज. ऑब्वियसली यू हैव सम काइंड ऑफ मैसेज, दैट्स व्हाई यू आर सेंडिंग समवन, और समवन इज सेंडिंग, क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, तभी आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, और that's why someone is messaging to you. The second one is sender. Now I have sent my message, I have sent some pictures to my friend, I am a sender, and my friend who received the message, my pictures or videos, anything, he is a receiver. Now medium on which platform we use to send our videos, on what platform we use our sender videos, कि हमने किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोज़ भेजी. लाइक वी यूज़ डिजिटल सिग्नल्स, लाइक वी यूज़ एनालॉग सिग्नल्स. दिस इज़ द वे वी ट्रांसफर आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके क्लास, आई होप यू विल गेट माई पॉइंट, एंड आई विल अटैच homework file with this video. So please complete your work till the next video. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz.